आप स्टार्ट करें। सर ये काइंडली टाइम जरा बता दें प्रेजेंटेशन का। सेशन जब कंप्लीट होगा तो एंड हो जाएगी? नहीं, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे, इसी लिंक पे हम आएंगे। नहीं अभी सर रिमेनिंग टाइम कितना है हमारे पास? 11:15 पे क्लास स्टार्ट हुई है, अब नहीं, 12 तक होगा ये। अभी और हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी दोबारा रीज्वाइन किया, रीज्वाइनिंग के बाद इसका टाइम एक्सटेंड हो जाता है और अभी स्टार्ट हुआ होगा चले क्योंकि दोबारा हो गया। यू हैव 40 मिनट्स आई थिंक सो। ओके सर, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Well, the topic for our presentation is control of generation. So before going on the topic, firstly, I want to introduce my group member, Muhammad Tala Khan, and me, Muhammad Danish Fez. So the topic is control of generation. But as we have already studied about that, the total system load is divided among the various generating units, that all the units operate at equal incremental cost. And it is the purpose to reduce the cost of operation with the help of incremental loading. The process that we have already studied before mid, it is known as economic load dispatch or economic scheduling. But without controlling generator units, there's a topic for us today. Like without controlling generator units, this method has no benefit. Like economic scheduling has no benefit without controlling generator units. So the method implement for controlling is much significant. Now come to the slide. First slide is about introduction. Like these all things are mentioned in the slide. What I was just telling you, like it's important to realize that optimized dispatching would be useless without the method of control over the generator units. Okay, means our economic dispatch, what we have done, the scheduling, its all method has been very helpful and beneficial for us, but it all has been useless without the method of control of generating units. Indeed, the control of generator units was the first problem faced in the early power system design. The methods developed for the control of individual generators and eventually control of large interconnection plays a vital role in modern energy control centers. So this is all about what I was saying. So come to the next slide. Yeah, this is the actually a picture of steam the generator that has been operating with the steam. Okay, and here there is a turbine, and you can just watch that the two torque there are. Now first is the mechanical torque on the turbine, and second is the T electrical torque. So the generator driven by steam turbine can be represented as large rotating mass with two opposing torques. Means two torques that are opposite in direction. Number first is mechanical torque and the second is electrical torque. But the T mechanical torque acts to increase the rotational speed, while the T electrical torque, it acts to decrease the rotational speed or in order to slow it down. यानी इन शॉर्ट जो कहने का मकसद है कि टी इलेक्ट्रिकल और टी मैकेनिकल जो है दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। टी मैकेनिकल टॉर्क जो है वो रोटेटिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा और टी इलेक्ट्रिकल टॉर्क ये रोटेटिंग स्पीड को स्लो डाउन करेगा। बट ये जो हमारे पास टरबाइन है और दैट इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, इसको स्मूथ चलने के लिए टी इलेक्ट्रिकल और टी मैकेनिकल टॉर्क इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो इन दिस केस रोटेशनल स्पीड विल बी कांस्टेंट। बट अब होता क्या है? होता ये है कि एज वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोड्स, सो इफ इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज देन होगा क्या? अगर इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज हो जाता है देन टी इलेक्ट्रिकल वुड बी ग्रेटर देन टी मैकेनिकल। सो इन दिस केस द रोटेटिंग सिस्टम विल बिगिन टू स्लो डाउन। अब जो हमारे पास सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पहले जो है जिक्र किया, आई हैव मेंशन्ड कि टी इलेक्ट्रिकल जो है, टी इलेक्ट्रिकल क्या करेगा? जो रोटेटिंग स्पीड है उसको कम कर देगा। और ऐसा ही होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से इंक्रीज हो जाए तो रोटेटिंग स्पीड विल बिगिन टू स्लो डाउन। बट it would be damaging to let the equipment slow down too far. Something must be done to increase the T mechanical to restore equilibrium. अब टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि the point that we have already discussed, that T electrical and T mechanical, the magnitude of these both torques should be same, so rotational speed would be constant. टारगेट ये है। बट टी इलेक्ट्रिकल अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमें किसी ना किसी मेथड से टी मैकेनिकल को टी इलेक्ट्रिकल के इक्वल करना होगा। So for that,
to accomplish this, the series of control systems are connected to the generator units. So in short, जो हमारे पास पूरा solution है वो यही है कि हम generator के साथ control system को attach कर देते हैं. Like control system में क्या आता है? Frequency transducer. Because जो first चीज affect होती है वो अफेक्ट ये होगी कि जैसे ही जो है टॉर्क इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी, बट वी मस्ट हैव टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी एट 60 हर्ट्ज. So the like the frequency transducer, it's a device that converts the signals in one form to another form. So if you have any question, you can ask about like the first two slides. So further on we will move on. Anyone have a question? ये मेरा क्वेश्चन है जी. ये इनकी डायरेक्शन क्यों चेंज है मैकेनिकल टॉर्क की और इलेक्ट्रिकल की? सॉरी, मैकेनिकल क्लियर नहीं आ रही. मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल की टॉर्क की ये डायरेक्शन की चेंज ऑपोजिट क्यों है? डायरेक्शन चेंज इसीलिए है ना कि आप अगर टरबाइन को देखें और टरबाइन की जो आगे आप शाफ्ट को देखें, ठीक है, तो इन ये दोनों जो है एक्चुअली जो मूव कर रहे हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे. ये देखें टॉर्क जो है ना, टॉर्क दो तरह की है, एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, एक मैकेनिकल टॉर्क है. जो मैकेनिकल टॉर्क है वो तो आपके पास टरबाइन को रोटेट कर रहा है, मैकेनिकली उसको मूव कर रहा है. बट इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल टॉर्क ये है कि जो आपके पास आगे जनरेटर को ऑपरेट कर रहा है. क्लियर? नहीं समझ रहा. नहीं, आप सिर्फ ये देखें ना, टॉर्क जो है ना, टॉर्क तो होता क्या है आपके पास? मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, टॉर्क जो है सिंपल टॉर्क. ठीक है, तो अब आपके पास दो टॉर्क इसीलिए हैं कि एक मैकेनिकल में है और एक टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है. तो टरबाइन को जो आपके पास रोटेट कर रहा है उसकी आपके पास रोटेशन जो है, इन शॉर्ट अगर आप इसको कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है दैट शुड बी क्लॉकवाइज है. तो टॉर्क की अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तभी जाके स्पीड जो मैंने मेंशन किया है कि रोटेशनल स्पीड सेम तब होगी कि जब दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए. अगर आप देखें दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो फिर तो इनमें कोई ऑपोजिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं. हमारा जो सारी डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि रोटेशनल स्पीड को हमने सेम रखना है, और वो सेम जो करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज में अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर सिस्टम में जब लोड अटैच होते हैं साथ, तो हर लोड की रिक्वायरमेंट्स, उसके प्री रिक्विजिट्स वो डिफरेंट होती हैं. इस वजह से इस चीज पे इफेक्ट पड़ता है उसका. क्लियर? सही. तो फर्दर वी विल मूव ऑन दी आवर नेक्स्ट स्लाइड. तलक, कैन यू काइंडली ओपन द नेक्स्ट स्लाइड? या. Now we have models. Actually, our topic of the presentation, like control of generation, its main concern and the main topic is the automatic generation control, AGC. That's, you have to say the advanced method, or my next group member, when we will move on that topic, he will introduce you and he will just explain you like what is that. Okay. So now we are discussing about the models. Load model. The loads on the power system consists of variety of electrical devices. As I have mentioned in the previous slide, that load consists of variety of electrical devices. Like the one device I have mentioned is frequency transducer. So you have lots of devices. Some of them are purely resistive, but some are the motor loads with the variable power frequency characteristics. Like some loads are purely resistive. Resistive load are non-motor loads. But some are the motor loads with the variable frequency characteristics. The relationship between the change in load due to the change in frequency is given by, so the relation you have in the front of you. Yeah, that I have explained the relation that delta PL. PL means the load frequency is equal to D. Del of omega means rotational speed. Delta PL divided by delta omega. Here the D is the percentage in load divided by the percentage load in the frequency. Okay, means delta PL is the percentage load and the delta omega is the percentage change in the frequency. Now take an example, like considering this equation in the front of you, like delta PL divided by delta omega means if we have a load change, for example, 1.5%. Load change means delta PL value is 1.5%, and for 1% change in the frequency, and delta omega value is 1%. Okay, so the D equation for the D, it would be equal to 1.5. Okay, so move on the next slide, please. So this sort of equation. Now come to the next model.
it is the governor model. The governor mechanism senses the machine speed and adjusts the input valve to change the mechanical power output to compensate for load changes and to restore the frequency to the nominal value. Well, the main purpose of this model is to maintain the frequency. Again, the point is that when we have different sort of loads, so due to that, our frequency would be sensitive. Frequency sensitive means that there would be a variations in the frequency. So what we have to do, we must have to maintain the frequency according to our standards and criteria. So there are different sorts of model that are related with that governor model. Can you move on next slide, please? Yeah. Now just look at the system. If everyone just zoom your screen and check out that this is a model in the front of you, like turbine speed governing system. Okay. And in this model, like I will discuss that model in the upcoming slide, but just look at the picture. Here, there is on very rightmost side of you, it is the steam. Means this is a turbine that will operate on the steam. Okay. Let's move on next slide, because on next slide we will discuss that figures. Yeah. Number first is our fly ball speed governor. Okay. Before telling you, just look into the figure. Means there are in short, means in the center, there is some sort of spring in the front of you, and the corners of the spring are attached with the two balls. This is known as fly ball speed governor. So what would be its mechanism? Its mechanism is heart of the system senses change in speed. Okay, because now, like as I have discussed with you, like our main purpose is just to sense the speed and maintain that speed, because we don't want to change in the frequency. Okay, so first method that we are using is the fly ball speed governor. Means heart of the system changes senses the change in speed. So as the speed increases, the fly ball move outwards. Now again come to that sort of spring, like he's saying, like as your speed will be increased, जैसी speed increase होगी, तो जो fly ball, जो आपके पास two balls नजर आ रही हैं that are attached with the spring, it will move outward. ये बाहर की तरफ move करेंगी. And the point B on the linkage mechanism moves downward. और ये point B नजर आ रहा है. चला अगर आप previous slide पे जाएं, figure वाली. Yeah. Look at the point B. जो point B है, like जैसी speed में change आएगा, point B will move downward. ठीक है? और जो हमारे पास fly ball हैं, both fly balls that will move outward. Okay. Come to the next slide. Next slide, please. Yeah. So it is a previous slide. Fly ball mechanism. Yeah. Again, come to that point. Like as the speed increases, the fly ball move outwards, and the point B on the linkage mechanism moves downward. So it provides the mechanical motion in response to the speed changes. जैसी speed change होगी, so this is some sort of the mechanical work that we have to do in order to control the speed. यहाँ तक अगर किसी का कोई question है, so you are welcome to ask. Anyone have a question? नासिर, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके. उर्दू में बोलो, दानिश में समझ नहीं है. हैं? जी आप समझने की कोशिश करें. It's their skills. If you don't have a skill, then you must have to do that skill. आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, सेशन को कंप्लीट होने दें. एंड अगर इन केस अगर आपका सेशन जो है ये गालबन 5 मिनट्स रह गए हैं, तो इसके बाद दोबारा इसी लिंक पे आपने आना है, क्योंकि अभी इनकी चलेगी क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ग्रुप को मौका देंगे. आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इशफाक यहाँ पे वो डील करेंगे. ठीक है. अभी सर ये एंड हो गया जी सेशन? सर, जी सर. जी नेक्स्ट हो गया? नहीं सर, अभी रहती है, मैं कह रहा हूँ सेशन एंड हो गया. नहीं, सेशन अभी एंड नहीं हुआ, 5 मिनट रहते हैं. तो अगर इन केस एंड हो जाता है तो फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है सर. स्टार्ट कंटिन्यू करोगे? ये जो टॉपिक है ये पावर जनरेशन के रिलेटेड है. जी.
पावर से, हाँ पावर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न है, जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया है कि कंट्रोल ऑफ जनरेशन है। मींस ये जो हमने इकोनॉमिक डिस्पैच किया था, उसमें हमारे पास यही था कि डिफरेंट लोड्स जो हैं उनको हमने वेरिएबल कॉस्ट पे रखा था। इन शॉर्ट हमारा मकसद यही था कि ऑप्टिमम डिस्पैच के इफेक्टिवनेस हमारे पास आए, मींस जो रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं वो आए, और रिजल्ट्स भी हमारी जो डिजायरेबल कॉस्ट है उसमें आए। बट इसमें कंट्रोल जो है, बिफोर दैट कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपके हम पास सिंपल कंट्रोल ऑफ वर्ड जनरेशन है। अगर नासिर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इसका कहने का ये मतलब है कि डिस्पैचिंग करने से पहले हमने अपने तमाम यूनिट्स को कंट्रोल करना है, मतलब कि उनके जितने भी लॉसेस हैं वो कम हों। और वो लॉसेस किस वजह से होते हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए हमें अपने गवर्नर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब टरबाइन के साथ जो हमारे अल्टरनेटर अटैच है उनके टॉर्क्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 और 60 हर्ट्ज के दरमियान में रहे। तो बिल्कुल इकोनॉमिकल डिस्पैचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सबसे पहले अपनी जनरेशन जो है उसको कंट्रोल करें। ऐसा ही है। दानिश आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो नासिर ऐसा ही है, क्लियर है आपको? हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई भी। चैलेंज सही हो गया। तो चलो आप ये जो हमारी स्लाइड है गवर्नर मॉडल वाली, इस पे आप अगर अगेन वापस आएं कि अगर किसी का अगेन क्वेश्चन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये इसी बात करना गवर्नर मॉडल वाली स्लाइड, या इस स्लाइड को अगर आप लोग अगेन देखें, इशफाक ने जैसे कहा है कि जी उर्दू में एक्सप्लेन कर दें, तो लाइक इस स्लाइड में इन शॉर्ट हमारे पास यही बताया जा रहा है कि लाइक सपोज अ जनरेटिंग यूनिट इज ऑपरेटेड विद अ फिक्स मैकेनिकल पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, कि जी हमारे पास कोई भी यूनिट है वो फिक्स्ड मैकेनिकल पावर पे ऑपरेट अगर हो रहा है, और लोड में जैसी भी कोई भी चेंज आएगा, मतलब थोड़ा सा भी चेंज अगर आता है, सो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव लोड टू एग्जैक्टली कंपनसेट फॉर द लोड चेंज। इसकी वजह से आपके पास लोड चेंज हो जाएगा और स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा। दिस कंडीशन अलाउज सिस्टम फ्रीक्वेंसी टू ड्रिफ्ट फॉर आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट्स। अब इस कंडीशन की वजह से, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपके पास बुक से पढ़ रहा हूँ, यानी बुक्स में जो आपके पास थोड़ी सी चीजें इसके बारे में मेंशन हुई हुई हैं गवर्नर मॉडल के, तो इस कंडीशन की वजह से हमारे पास होगा ये कि फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, लिमिट्स क्या है 60 हर्ट्ज, इससे जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी जैसे ही कोई भी आपके पास चेंज आता है। सो दिस इज ओवरकम बाय एडिंग अ गवर्निंग मैकेनिज्म दैट सेंसेस द मशीन स्पीड। जो हम गवर्निंग मैकेनिज्म कर रहे हैं, जैसा मैंने आपके सामने मेंशन किया फ्लाई बॉल वाला, ये एक मैकेनिज्म है। इसी तरह के हमारे पास वेरियस मैकेनिज्म्स हैं जिनसे हम जो है वो मशीन स्पीड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो आप सेकंड पे आ जाएं, हाइड्रोलिक एम्पलीफायर पे। वेट फॉर हाइड्रोलिक एम्पलीफायर, ये नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। इस सेशन में हमारे ओके पास सर। सिर्फ 1 मिनट रह गया। अच्छा, ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, जब तक ये कर लेते हैं। तो ये जो गवर्नर जी सर। मॉडल है, आपने बुक को स्टडी किया, बुक को फॉलो किया, या अपनी जी तरफ से सर, ये स्लाइड्स बनाई नहीं है सर, ये? बुक से ही, ये सारी बुक से फॉलो करके बनाई है सर। अच्छा, तो बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी थी गालबान, कौन सा एडिशन था? जी सेकंड सर। एडिशन था? बुक का सर? जी जी, या जो सॉफ्ट कॉपी जी मैंने सर, सेंड की थी आपको, उससे देख वही रहे वाली थे? जो आपने सेंड की थी वही वाली है, चलें ठीक है, जे वेरी वुड गुड, वाली। सही जी है। जे वुड वाली जो है। तो जी सर, उसी से ही हमने ऐसा डाटा लिया है सर। उसमें जो गवर्नर मॉडल है, मेरे पास जो बुक है प्राइम मूवर मॉडल, वो आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। प्राइम मूवर था, रोटेटिंग शाफ्ट, स्पीड मेजरमेंट डिवाइसेस जो होती थी, सर वो ये एक दो बुक से और भी कंसर्न किया है सर, अच्छा, तो वो नेट से एंड भी क्योंकि वो जी कुछ जी, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी सर उसमें, वो सही, जो ठीक हो उसमें गया। मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत टफ थी सर। जी बिल्कुल, इसलिए यही मैं पूछना चाह रहा था, उनको निगलेक्ट कर दें। इस वजह से मुझे पता था, आपने मेरे से कांटेक्ट जी किया, सर। तो मैंने उनको फर्दरी देखा इसको, तो फिर मैंने कहा कि जी लीव इट। तो एंडिंग पे उसके जी रेफरेंस सर, लिख दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, जी जो सर, जो हम ऐड कर आपने देंगे। जो रीडिंग मटेरियल जहाँ से यूज किया ना, जैसे इस बुक के एंड पे भी लिखा होता है कि जी आपने इन इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये हमने बनाया है, ठीक है? तो उस जी पे सर। आप एजीसी इम्प्लीमेंटेशन पे आप आए हैं? जी सर, उस पे आए हैं सर, वो भी तलहा के जी, जिम्मे जो टास्क है वो सारा यही एजीसी का ही है जी सर। जी। ठीक है, तो ओके। हमारे पास और कोई क्वेश्चन है मीन वाइल, तो आप उनसे कर लें। स्टूडेंट्स, आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। बाकी जो है तलहा की जो डिटेल्स ब्रीफिंग है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और नेक्स्ट सेशन हम फौरन ही स्टार्ट करेंगे, जो ये एंड होगा, ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के